Hello student, I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gyan Manjari Vidyapith Moa. Yesterday we already started the unit number 1, that is fraction, and also discussed about the fractions in SB1 and SB2 of your supplementary book. So both of the pages I given also some homeworks related SB1 and SB2. Only those things you have to rebuild whatever is descriptions over there. So today we starts whatever we explained yesterday, that things we calling as a part of your syllabus. So first of all, today we are going over there into the recall whatever the fraction part you have understood into the previous classes, that things we again revealed over here. So first, what is the fraction part that we discussed again? First thing is that if you have any fractional part, so this is a one chessboard over here, it is a black. So what fraction of the chessboard here given that it is a black. So आपको fractions बताने हैं जितने black part है. सो देर आर 64 स्क्वायर ओवर हियर, आप काउंट भी कर सकते हो. एक रो में 8 है और दूसरे रो में भी 8, और आपको पता है कि चेस बोर्ड में कितने बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं, स्क्वायर कितने अवेलेबल होते हैं. सो दैट इज 64 स्क्वायर्स ओवर देयर, and we have to using only the black. How many black squares over there? So we have to find out the fractions part of the black. तो आप कह सकते हो ना कि कितने ब्लैक होंगे और कितने वाइट होंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ऑटोमेटिकली टोटल 64 होंगे. तो 64 में से कितने ब्लैक होंगे? ऑब्वियसली वी हैव टू यूज हियर द 32. So 32 is the square out of 64 square are the black. So we can write like that way, 32 divided by 64. So this is a fraction parts is given here. So this is a particular fraction because of we have to take only the 32 black out of 64. So we can manage of 32 divided by 64. कल ही हम सीख चुके हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन पे हम कोई भी नंबर रखेंगे, दैट इज कंसिडर्ड एज अ फ्रैक्शन. सो जस्ट चेक इट अनदर वे. Now this 32 portion we already mentioned over here, and this is 32 divided by 64. Now let us move on to the another point. So what do you understand about in this first question mark? आप पहले क्वेश्चन मार्क में क्या और दूसरे क्वेश्चन मार्क में आप क्या मेंशन कर सकते हो, ये चीज़ आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है. जस्ट वी हैव टू यूजिंग दैट 32. So 32, that is a part of the numerator and this is the denominator. So in the question part what we write here, क्या हम लिखेंगे इसमें? इक्वेशन 32 को क्या बोलते हैं और 64 को क्या बोलते हैं? सो ऑब्वियसली वी हैव टू यूजिंग द नेम. 32 को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और 64 जहाँ पे लिखा है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. इज इट क्लियर? नाउ let us move on it that what are the numerators and denominator. अब न्यूमरेटर किसको बोलते हैं और डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं? अभी हमने प्लेस डिसाइड कर दिया कि 32 को न्यूमरेटर बोलते हैं और 64 को डिनोमिनेटर बोलते हैं. अब एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन क्या है? न्यूमरेटर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हियर, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स बीइंग कंसीडर्ड. जितने पार्ट हमें कंसीडर करने, यहाँ पे हमें चेस बोर्ड में ब्लैक पार्ट कंसीडर करने थे, तो 32 इज ए न्यूमरेटर एंड 64 इज डिनोमिनेटर. सो व्हाट इज द डिनोमिनेटर?
total number of equal parts that the whole divided into, मतलब जो टोटल पार्ट है उसमें उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तब उसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो ये चीज क्लियर हो गई, न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है विथ द डेफिनेशन। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट नाउ व्हाट इज द लोएस्ट फॉर्म इट्स दिस फंक्शन। कल भी हम यही लेक्चर में एक्सप्लेन किया था फ्रॉम द सप्लीमेंट्री बुक। यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम द सप्लीमेंट्री बुक, जो भी चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दैट इज ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन योर सप्लीमेंट्री बुक, सो यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री बुक। सो हियर द लोएस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं, फ्रैक्शन का। तो हियर गिवन द सम हिंट्स, यदि आपको समझ में नहीं आता या याद नहीं है, अभी रिकॉल करते हैं तो हम what are the points that we discussed into the bridge course as well as into the previous class. So lowest form, fraction का lowest form क्या होता है? Find the highest common factor that divides both the numerator and the denominator that is considered into the first one. तो हमें क्या करना होगा, 32 और 64 को वही नंबर से हमें पहले हम इसी चीज को मेंशन करेंगे, इसी चीज को मेंशन करेंगे मतलब हमें क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म निकालना है। तो 32 और 64 को हम ऐसे एक नंबर से डिवाइड करें तो ऑब्वियसली 32 को और 64 को 32 से डिवाइड करें, बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों साइड को 32 से डिवाइड करें तो हमारे पास 1/2 आता है, दैट इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। Similar way we are going on to the next portion. So whatever we discussed into the previous lectures, again we have to take the recap of this fraction. Here given some examples, you have to set or you have to say that which one is the mixed fraction, which are the improper fraction and which categorize under the proper fraction. So proper fraction कौन है, improper fraction कौन है और mixed fraction कौन है, ये given नंबर में से आपको बताना है। तो हम इजीली इसको रिकॉल कर सकते हैं क्योंकि हम कल ही ये चीज़ सीखे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसमें न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर से या तो इक्वल होता है या तो छोटा होता है। और तीसरी चीज जिसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों होता है, ये दोनों को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो उसी के ऊपर से आप क्लासिफाई कर सकते हो। आप अपनी बुक भी साथ में रखिए और उसमें लिखने की ट्राई कीजिए कि विच आर द प्रॉपर फ्रैक्शन, विच आर द इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट्स विथ इट। ऑब्वियसली 3/5 एंड 7/8 दैट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। आप देख सकते हो कि प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, 3 है वो न्यूमरेटर है और 5 है वो डिनोमिनेटर है। तो कौन छोटा है, न्यूमरेटर। जब किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है तब उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उससे उल्टा होता है, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं लाइक 5/5 देखो यहाँ पे, या तो न्यूमरेटर ऑलवेज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, जो नीचे वाला नंबर होता है उससे
ऊपर वाला नंबर ऑलवेज बड़ा होता है या तो इक्वल होता है, तब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में दो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है होल नंबर, आप देख सकते हो 1 and 34, दैट इज द होल नंबर, एंड देन आफ्टर होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये जो नंबर आपको गिवन है वो सभी नंबर इसमें हम कैटेगराइज कर चुके हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राइड विथ योर सेल्फ। वही कंडीशन जो कल मैंने आपको बताई थी वही चीज यहाँ पे भी मेंशन की है। यदि याद नहीं रहता है तो आप अपनी बुक में ये लिख लो कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। इसकी ही प्रैक्टिस ज्यादा करना है। One more things you have to remember here. Improper fraction and mixed fraction are greater than or equal to 1. आप देख सकते हो कि जब भी इसका आंसर आएगा इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन का, वो एक से ज्यादा ही आएगा। किसका आंसर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड का फ्रैक्शन का आंसर, या वो दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगी और प्रॉपर फ्रैक्शन की 1 से कम रहेगी। Now we have to solve here today. Convert 7 by 2 into mixed fraction, and the second one is the 1 upon 3 by 4 to an improper fraction. तो ये दोनों नंबर जो है उसको आपको कन्वर्ट करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। कोई भी एग्जांपल्स आप अपनी तरीके से भी बना सकते हैं और पुट कर सकते हो प्रैक्टिस में। So you can also write down like that. So how to solve this particular two sums? Now 7 by 2 into the mixed fraction. So 7 by 2 means 7 times 1 by 2 or 7 halves, ऐसे भी हम बोल सकते हैं उसको। So first step, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, divide the numerator by the denominator। तो पहले हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, लाइक दैट। 7 को 2 से डिवाइड करें तो 2 3 are 6, सो वी हैव टू रिमेन्स 1 इज द रिमाइंडर। तो हमें क्या करना है, स्टेप 2 में मैंने कल भी बताया था, आपको फिर से बता रहा हूँ। राइट द मिक्स फ्रैक्शन इज रिटन एज क्यू आर अपॉन डी, मतलब क्यू मतलब क्वोशन मतलब ये 3, फिर आर की जगह पे ये लिखना है 1 और डिवाइजर की जगह पे आपको लिखना है 2। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। पहले स्टेप में आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, दूसरा स्टेप है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगी आपकी क्वोशन इनटू रिमाइंडर डिवाइड विथ डिवाइजर, क्यू आर अपॉन डी। ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी नंबर्स को, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये चीज भी स्टेप दोनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 1 अपॉन 3 by 4 टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दिया गया है और उसमें से आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है। तो पहली मेथड क्या है, राइट द होल नंबर पार्ट एज ए फ्रैक्शन। सो 1 इंटू 3 by 4 में 1 जो है वो होल पार्ट है, बाद में जो है वो 3 by 4 है, तो 1 प्लस 3 by 4 ऐसे ही लिखेंगे आप। 1 को यू कैन ऑल्सो से लाइक 4 by 4, 4 by 4 से आप रिप्रेजेंट करें तो 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4 by 4। तो 4, यदि आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया दोनों जगह पे 4, तो आप ऊपर न्यूमरेटर का सम कर सकते हो, मतलब एडिशन कर सकते हो। सो 4 प्लस 3 कितना हुआ 7, और नीचे डिनोमिनेटर तो 4 है ही। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड से किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, है ना, इजी चीज।
So let us move on to the next point. Second method for converting mixed fraction into an improper fraction. So the improper fraction can be written as whole number into denominator. ये चीज है वो अपने इक्वेशन और फेयर बुक में लिख लो, क्योंकि ये मेथड है थोड़ा इजी रहता है आपके लिए फर्स्ट मेथड से। सेकंड मेथड दैट विल बी इजी, और हम यही मेथड यूज करेंगे जब भी कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन में से आपको ऐसा बताया जाता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तब आपको न्यूमरेटर की पोजीशन पे क्या लिखना है, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर। होल नंबर जो भी है आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में वो लिखेंगे, उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर इसमें ऐड कर देंगे, और डिनोमिनेटर की पोजीशन यानी नीचे की साइड पे आप डिनोमिनेटर लिखेंगे। सो 1 इंटू 4 हम कैसे लिखेंगे, होल नंबर हमारा क्या है 1, डिनोमिनेटर हमारा क्या है 4, फिर 1 इंटू 4 प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे न्यूमरेटर जो हमारा 3 है, और सबसे नीचे हम फिर से लिखेंगे उसका डिनोमिनेटर दैट इज 4। तो ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर द मेथड नंबर 2। सो सम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को भी हम कंसिडर कर लेते हैं। 1/4 एंड 4/16 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं वो बताना है आपको। सो 1/4 और 4/16 को आप 4 से डिवाइड कीजिए तो 1/4 ही आता है, तो दैट इज कंसिडर एज ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि जब भी आंसर इक्वल आता है, क्योंकि 4/16 को आप क्या करेंगे, ये बड़ा नंबर है तो उसको हम क्या करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है वो मैंने कल भी आपको बताया था। सो 4/16 को एक ऐसे कॉमन नंबर से डिवाइड करो कि जिसका लोएस्ट फॉर्म क्रिएट हो जाए। सो 4/4 and 16/4, so that's we have to got here the 1/4, that's why we can say that these are the equivalent fraction 1/4 and 4/16. Find an equivalent fraction of 6/10। 6/10 का आपको equivalent fraction find करना है। कैसे find करेंगे, to find an equivalent fraction just 6/10 we can multiply it or divide its numerator। numerator से हम divide करेंगे, 6 को 6 से डिवाइड करने की ट्राई करेंगे। सो वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। तो सेम नंबर से 3 को किसी भी नंबर से, ऐसा नहीं है कि 2 से ही डिवाइड करना है, किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो, यदि वो सिमिलर है तब दोनों जगह पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से यदि आप उसको डिवाइड करते हो देन वी विल गेट इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पे 3/5 6/10 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 10 को 2 से डिवाइड किया, देन वी हैव टू गॉट 3/5। तो दो सेम नंबर से डिवाइड किया, वैसे ही सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो और जो मिलता है 12/20। तो 3/5 एंड 12/20 दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/10। इज इट क्लियर? तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कोई भी सेम नंबर से या तो डिवाइड करो या तो मल्टीप्लाई करो। इज इट क्लियर? Now which fraction is greater out of 5/7 and 3/7? So 5/7 and 3/7 में आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन आर द सेम। यदि सेम है therefore the fraction with the greater numerator is greater। यदि जिसका डिनोमिनेटर सेम है तब न्यूमरेटर में जो बड़ा है वो ग्रेटर होगा, यानी 5/7 और 3/7 में 7 डिनोमिनेटर से सेम है, तो 5 एंड 3 में कौन बड़ा नंबर है, 5, तो ऑब्वियसली 5 is greater than 3। We can check this by locating the given fraction on a number line as shown below। 5/7 lies to the right of 3/7
और सो 5/7 इज ग्रेटर देन 3/7। आप उसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करके बता सकते हो कि 0 और 1 के बीच में ही 3/7 और 5/7 आता है। तो 3/7 और 5/7 है वो 3/7 की राइट साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर लाइन। तो जो राइट साइड है तो ऑब्वियसली कौन बड़ा हुआ, 5/7, क्योंकि ये पॉजिटिव में है इसीलिए। So, which fraction is greater out of 6/8 and 5/7? So let us check it. 6/8 and 5/7 आप देखो तो दोनों में डिनोमिनेटर अलग अलग है। तब हमें क्या करना है, 6/8 और 5/7 में डिनोमिनेटर जो भी है उसका एलसीएम लेना है। 7 एंड 8 का एलसीएम जो होता है 7 8 जार 56। So 7 and 8 is 56. So we can now convert each fraction to an equivalent fraction. 6/8 को ऐसे करेंगे कि उसके डिनोमिनेटर में 56 आ जाए। तो 8 को 7 से और 6 को भी 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 42/56 आएगा। वैसे ही 5/7 को 5 को 8 से और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40/56 आएगा। तो 42/56 और 40/56 में आप देख सकते हो जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया तब ऑटोमेटिकली जो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वो ग्रेटर होगा। सो 42 और 40 में 42 बड़ा है, दैट्स वाई 42/56 is the greater than 40/56. It's okay. You can also put it into the lowest form. तो 6/8 and 5/7 आप रख सकते हो। तो the fraction with the greater numerator is the greater. So now going to on to the homework side, just we check it out. So in today's homework, I just given you to the practice question 1 का 1.1 में A and B and 1.2 का A and B both you have to done today in today's homework. Okay, तो आपका आज का होमवर्क रहेगा 1.1 and 1.2 A B, टोटल 4 सम्स आपको करने हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 के 1.1 एंड 1.2 एंड यू हैव टू सेंड इट कंपल्सरी टू मी। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चंस में आपको मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करने और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने। इज इट क्लियर? So in today's homework you have to do this practice question 1, 1.1 and 1.2. I hope so that everyone get the concepts and you can also refer the SB1, SB2, SB3 तीनों 3 पेज और SB4 का जो भी कंटेंट्स हमने आज एक्सप्लेन किया है वो सब रीड करेंगे और बाद में ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम फर्स्ट पोजिशन टू द लास्ट। इज इट क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, 1.1 and 1.2. This is in today's homework. Thank you very much for being with us.